Good morning, my dear student. Today we will read class 11th history, last chapter, Path to Modernization. My dear student, in the class 11th history, this is the last chapter. If you have remembered my previous class, where you are all aware of that, I have already discussed about that, the important points of this chapter. Dear student, in my last class, I have discussed the political condition of China and which type of scenario, political scenario that was running on during 20th century and what happened with the Kuomintang party and how the CCP party emerged and became a powerful party in China. In other class, you are aware that the political history of Japan. In the political history of Japan, my dear student, I have discussed the new emergence of Japanese political power. Japan changed himself as an economical power after Second World War, when their two most important industrial city that was ruined or destroyed by USA in Second World War. In Second World War, America bombarding the atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki. That was the industrial hub, industrial center of Japan. It was totally destroyed. And after we have seen Japan change himself as the powerful economy in worldwide level. पूरे दुनिया में जापान ने अपने को प्रूव किया. We have discussed also their Meiji Restoration. We have also discussed the Moga Club, aggressive nationalism, and such type of other topics. Similarly, we have seen the condition of China and condition of Japan. These are all we have discussed in our previous class. Today we will read the next topic, the story of Taiwan. My dear student, in this topic, the story of Taiwan, you can easily understand that what happened with Kuomintang party when the CCP party come into the power in China. ताइवान एक नए देश के रूप में, एक नए द्वीप के रूप में, एक नए आइडियोलॉजी के रूप में चीन में दिखाई देता है. चीन में सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आने के बाद साम्यवादी सोच, मार्क्सिस्ट विचारधारा को टोटली इंप्लीमेंट करती है, सोशलिज्म को फॉलो करते हैं चाइना. और वहीं पूर्व की 1949 के पहले की चाइनीज जो रिपब्लिक थी वो कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी. और यहीं से एक नए देश, एक देश में दो तरह की व्यवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं. इट वॉज वेरी स्ट्रेंज मैटर दैट नाउ अ डे इन चाइना ताइवान बिकम अ competitive country. I am a competitive state for the China. ताइवान आज के डेट में भी चीन के लिए कॉम्पिटिटिव स्टेट के रूप में दिखाई देता है. There were the various disputes and conflicts between China and Taiwan. Today we will read the story of Taiwan. I think this is given on your page number 252. The story of Taiwan. Chiang Kai-shek, defeated by the CCP, fled in 1949 to Taiwan with over US 300 million in gold reserve and creates the priceless art treasures and established the Republic of China. Taiwan had been Japanese colony since the Chinese ceded it after 1894 to 95 war with Japan. The Cairo Declaration 1943 and the Potsdam Proclamation 1949 restored
the sovereignty of China. Author want to inform you about that the emergence of Chinese, I mean to say that the new type of political system, एक नई व्यवस्था. कहते हैं कि चीनी साम्यवादी दल द्वारा हार जाने के बाद, पराजित होने के बाद, चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले. वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की, चाइनीज रिपब्लिक स्टैब्लिश किया. 1894-95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथों सौंपनी पड़ी थी और तब से जापानी उपनिवेश, जापानी कॉलोनी के रूप में ये ताइवान जाना जा रहा था. अब कायरो घोषणा पत्र, कायरो प्रोक्लेमेशन इन 1943 एंड पोट्सडैम प्रोक्लेमेशन 1949 के द्वारा चीन की संप्रभुता वापस मिली. फिर ताइवान चीन को वापस मिला और इसी ताइवान आइलैंड में नई चाइनीज गवर्नमेंट फॉर्म हुई चियांग काई शेक के द्वारा. फरवरी 1947 में एक जबरदस्त प्रदर्शन के बाद गोमिंतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी चाइना में. चियांग काई शेक के नेतृत्व में गोमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आजादी छीन ली और सत्ता की जगह स्थानीय आबादी की पूरी तरह बर्बाद कर दिया. इट मीन्स चियांग काई शेक ने कई सारे ब्रूटल स्टेप लिए चाइना में. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म कर दिए गए, गवर्नमेंट की पावर का मिसयूज किया गया और फिर पूरी तरीके से चीन को एक नए स्वरूप में ढालने का प्रयास हुआ. फिर भी चियांग काई शेक ने भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी. उन्होंने अर्थव्यवस्था को भी मॉडर्नाइज किया. इसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा. अर्थव्यवस्था में जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी, लगातार वृद्धि करती गई. लेकिन अहम बात यह है कि जो अमीर और गरीब के बीच का अंतराल था वो लगातार घटता गया. इट मीन्स व्हाट आई वांट टू से दैट द चियांग काई शेक he want to introduce a new type of China, so that's why they take some brutal step against rebellions, against their protesters. क्या किया उन्होंने बड़े पैमाने पर एसोसिएशन करवाई और फिर उनके बाद उन्होंने कई सारी चीजों को नए तरीके से चाइना में इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया. शुरुआत कहां से कहता है कि चीनी साम्यवादी दल, I mean to say that कि Chiang Kai-shek defeated by the CCP fled in 1949 to the Taiwan with US $300 million in gold reserve and create the principles, art, treasures, and they established the Republic of China. Established a Republic of China. Taiwan had been a Japanese colony since the China and ceded after the 1894-95 war with Japan. The Cairo Declaration and the Potsdam Proclamation 1949 restored sovereignty to China. Massive demonstrations in February 1947 that led to the GMD Kuomintang party to brutally kill whole generation of leading figure. The Kuomintang under Chiang Kai-shek went to establish a repressive government forbidding free speech and political opposition and excluding the local forbidding free speech, local population from position of power. However, they carried out land economy so that by 1973 Taiwan had a GNP second only to that of Japan in Asia. The economy
largely depend on trade, has been steadily growing. But what is important is that the gap between the rich and the poor has been steadily declined. एकदम क्लियर कहता है कि we had seen during Taiwan and their economy. Even Chiang Kai-shek took some brutal action against their protesters, their oppositions, peoples. उन लोगों पे जो उन्होंने उनका विरोध किया, उनके अगेंस्ट उन्होंने कड़ी कार्रवाई की, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया. जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भूमि सुधार लागू किया. Land reformations, they were continued in China, and on the basis of land reformation, China changed himself. I mean to say, the Republic of China, Taiwan changed himself as a productive country. जापान के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी प्रोडक्टिव कंपनी के रूप में वो अपने को स्थापित करता है. व्यापार में वृद्धि होती है, इनकम बढ़ती है, और सबसे अहम बात थी कि अमीर और गरीब के बीच की जो एक लंबी अंतराल दिखाई देता है वो भी कम हो रही थी. इवन मोर ड्रामेटिक हैज बीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ताइवान इनटू अ डेमोक्रेसी. इट बिगेन स्लोली आफ्टर द डेथ ऑफ Chiang in 1975. Opposition parties were largely permitted. The first free election began the process of bringing local Taiwanese to power. Diplomatically, most countries have only trade mission in Taiwan. But dear student, it is the very strange matter that after the death of Chiang Kai-shek, the opposition party permitted to change the structure of Chinese Republic from socialist to or capitalist to democratic government. After the death of Chiang Kai-shek, which means in 1975, first elections happened. एक नया इलेक्शन हुआ. कहता है कि ताइवान का एक लोकतंत्र में चेंज होना एक महत्वपूर्ण नाटकीय घटना रही ताइवान में. ये तब हुई जब 1975 में चियांग काई शेक की मृत्यु हो गई. मृत्यु के बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू हुआ. 1887 में जब वहां पे मार्शल लॉ हटा दिया गया और विरोधी ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों में व्यापार मिशन केवल ताइवान से ही है. इसके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं, क्योंकि ताइवान चीन का ही एक मेन लैंड के रूप में जाना जाता है. फिर चीन के साथ इसके पुनर्एकीकरण किया गया, लेकिन प्रश्न अभी भी विवादास्पद बना हुआ है कि ताइवान क्या चीन का हिस्सा है. और यदि खाड़ी पार यद्यपि खाड़ी पार के संबंध मतलब चीन और ताइवान के मध्य संबंध सुधर रहे हैं. ताइवानी व्यापार और निवेश मुख्य भूमि के ताइवान चीन के साथ बड़े पैमाने पे हो रहा है. ट्रांसपोर्टेशन में भी वृद्धि हुई. संभवतः चीन ताइवान के एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने से सहमत हो जाएगा अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है. एक एक्सपेक्टेशन रखी गई है कि जो ताइवान का गठन हुआ, जो ताइवान बना, इस ताइवान को यदि एक नए स्वरूप में बदला जाए जिसमें चीन उसको ये मान्यता दे कि वो क्या है, सेमी ऑटोनॉमस एरिया है, या ताइवान अपने को सेमी ऑटोनॉमस एरिया मान के चीन के मेन लैंड का पार्ट मान ले, तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो चीन और ताइवान के बीच है वो समाप्त हो जाएगा. I want to tell with you that the major conflict between China and Taiwan that is taken as a part of China, modern China. But the various people in Taiwan, they believe that Taiwan that is a separate state. We follow democratic way and China follow the socialist way of government. There is the vast difference between both government. Taiwan always treated himself as a separate state. So some political philosophers, they suggest that if Taiwan changed their ideology and treated himself as a part of mainland, then the
the relation between China mainland and the Taiwan both would be what, एक अच्छे कंडीशन में वो आ जाएगी, इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी। यही बात कहता है कि इवन मोर ड्रामेटिक हैड बीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ताइवान इनटू अ डेमोक्रेसी। It began slowly after the death of Chiang Kai in 1975 and grew the momentum when martial law was lifted in 1987 and the opposition parties were legally permitted. The first free elections began to process, bringing local Taiwan to power. Diplomatically, most countries have only trade mission in Taiwan, filled diplomatic relation and embassies are not possible as Taiwan is considered to be a part of China. The questions of reunifications with mainland remains the contentious issue, but cross-state relation that is between Taiwan and China have been improving the Taiwanese state and transmitted in the mainland are massive and the travel has also become easier. China may be willingly to tolerate a semi-autonomous Taiwan as long as they grew up any move to seek the independence. I hope you are understanding what I am telling with you. My dear student, in the whole topic, author want to inform you about that in short, the story of Taiwan and their emergence. According to your book, author want to inform you that Chiang Kai-shek, who became the leader after the death of Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek established the Chinese Republic when कब कहता है कि जब वो चीनी साम्राज्य दल के द्वारा पराजित हुए। When Chiang Kai-shek defeated by the CCP fleet in 1949, he established a new government in Taiwan. Taiwan was the colony of the Japanese, and the proclamation, I mean to say that 1949 and declaration of 1943, Cairo declarations and the Potsdam proclamations 1949, on the basis of that Taiwan became what? Free. जापान के द्वारा उसको फ्री कर दिया गया और यहीं पे at that place the government, the republic government was established by Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek जब वो कम्युनिस्ट पार्टी से हारे तो बड़ी संख्या में पैसे, बड़ी संख्या में सोना लेकर के वो कलाकृतियां, पुरानी मूर्तियां, इन चीजों को लेकर के वो चाइना पहुंचे और चाइना में ही उन्होंने क्या किया? चाइना पहुंचने के बाद उन्होंने इन कलाकृतियों, इन मूर्तियों को एक नए स्वरूप में इनका यूज अपनी अर्थव्यवस्था के लिए किया, पैसे। और फिर उन्होंने जो सुधार किए थे, अपने विरोधियों के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन लैंड रिफॉर्म सिस्टम उन्होंने एज इट इज इंप्लीमेंट किया अपने यहां और लैंड रिफॉर्म से प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई, प्रोडक्शन बढ़ा और धीरे धीरे ये देश जापान के बाद दूसरा प्रमुख उत्पादक देश के रूप में जाना गया। तो ये था एक बाहर का स्वरूप, लेकिन एक ड्रामेटिकली चेंज आता है ताइवानीज पॉलिटिकल सिस्टम में, ताइवानीज पॉलिटिक्स में। ये ड्रामेटिकली चेंज क्या थी? कहता है डेमोक्रेसी इट बिगेन स्लोली आफ्टर द डेथ ऑफ चियांग काई शेक इन 1975. That was dramatically changed. That was introduced in China after the death of Chiang Kai-shek in 1975. The opposition party, विरोध में जो पार्टियां थी, they permitted legally that democratic government form in China. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाइना में बने। इसके पीछे और भी कारण थे, जैसे कहता है कि जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात हुई, फर्स्ट इलेक्शन हुआ, वहां पे गवर्नमेंट बना। अब जो महत्वपूर्ण बात थी कि राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही है। इनके द्वारा ताइवान में
पूर्ण राजनयिक संबंध और अपनी एम्बेसी रखना संभव नहीं। किसके द्वारा? विदेशी कंपनी, विदेशी देशों के द्वारा, क्योंकि ताइवान को अब चीन का ही एक पार्ट के रूप में माना जा रहा था। ये दोनों के बीच महत्वपूर्ण विवाद का विषय था। इसके लिए जरूरी था कि ताइवान या तो अपने को सेमी ऑटोनॉमस स्टेट घोषित करके चीन के मेन पार्ट का हिस्सा मान ले, या चाइनीज गवर्नमेंट उसको इस तरह की कोई अथॉरिटी दे। इवन नाउ ए डे दिस टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स व्हाट आप देख सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व डेली न्यूज़पेपर्स, चाइनीज कंडीशंस अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पे चीजें मिलने लगेंगी। आपको एक बड़ा बदलाव वहां पे दिखाई देने लगेगा और यहीं से ताइवान का विकास होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। व्हाट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टू रोड्स टू मॉडर्नाइजेशन। टू रोड टू मॉडर्नाइजेशन मतलब दो रास्ते, आधुनिकता के दो रास्ते। टू रोड टू मॉडर्नाइजेशन, व्हाट टॉपिक? टू रोड्स टू मॉडर्नाइजेशन। Two roads to modernization. This is our next topic which we are going to read. कहता है ये टू रोड्स क्या है? कहता है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल समाज में, औद्योगिक समाजों ने एक दूसरे के जैसे बनने की बजाय आधुनिकता के अपने अपने मार्ग बनाए। कहने का सेंस ये है कि सीधा सीधा कह रहा है, author want to inform you the industrial societies far from becoming like each other have found their two path to becoming modern. They accepted two path to becoming modern. क्या था two path? कहता है कि चीन और जापान का इतिहास यह हमें बताता है कि किस तरह अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आजाद और आधुनिक देश बनाने की बिल्कुल अलग अलग राहें तैयार की, अलग अलग रास्ते बनाए। जापान अपनी आबादी और अपनी आजादी दोनों के प्रति सिंसियर था। जापान अपनी आजादी बनाए रखने में सफल रहा और अपने ट्रेडिशनल जो स्किल थी, कस्टम्स थे, कल्चर था, इन तरीकों का वो इस्तेमाल करता रहा। इवन जो एलिट क्लास के लोग थे, एलिट क्लास का जो नेतृत्व में हुए आधुनिकीकरण ने एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया, अग्रेसिव नेशनलिज्म को प्रमोट किया। और ये जो अग्रेसिव नेशनलिज्म थी, इसने जापान की कॉलोनी को एक्सपेंड कर, जापान की नई कॉलोनी स्टेब्लिश करने के लिए लोगों को प्रमोट किया। साथ ही साथ जो ये उग्र राष्ट्रवाद का जो विकास जापान में हुआ, उसने शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा, एक्सप्लॉयटेशन रेट भी बढ़ने लगे, जिससे विरोध और लोकतंत्र की मांग का गला घोट दिया। इसने लोकतंत्र की जो डिमांड थी वो, और जो लोग अपने को अधिक फ्री होना चाहते थे वो, इन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। और इसका रिजल्ट औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिसने उस क्षेत्र में बैर की भावना रही और अंदरूनी विकास भी प्रभावित हुआ। कहता है था कि जो ये पूरा सिस्टम चल रहा था, रन कर रहा था, इसके पीछे के जो चेंजेस हो रहे थे, इसमें क्या बदलाव था? कहता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज फार फ्रॉम बिकमिंग लाइक ईच अदर हैव फाउंड देयर ओन पाथ टू बिकमिंग मॉडर्न। द हिस्ट्रीज ऑफ जापान एंड चाइना show how different historical conditions led them to widely divergent path to building independent and modern nation. Japan was successful in retaining its independence and using traditional skill and practices in new ways. However, its elite driven the modernization generated and an aggressive nationalism helped to
sustain a repressive regime that stripped dissent and demand for democracy, and established the colonial empire that left a legacy of hatred the regions as well as the distorted international developments. I mean to say that what the Japanese program of modernization was carried out in environment dominated by Western imperial powers. While it limited them, it also attempted to find its own solutions. Japanese nationalism was marked by these different compulsion, while many Japanese hoped to liberate Asian from Western dominion. For others, these ideas justified building an empire. It is important to note that the transformation of social and political institutions and daily life was not just a question reviving the traditions for the tenaciously preserving them, but rather of creatively using them in new and the different ways. For instance, the Meiji school system, modeled on European and American practices, introduced new subject, but the curriculum's main objective was to make loyal citizens. A course on moral that stressed the loyalty of the emperor was compulsory. Similarly, change in the family or in daily life. So, how foreign and indigenous ideas were brought together to create something new. It means, if you will read the whole paragraph, then the clear view, clear ideas come to your mind that how Japan changed himself as a political and economical power आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. कहता है कि अगर बात करें दोनों देशों की, चाइना और जापान की, उनके अपने कंडीशंस की, तो दोनों ने नई नई प्रथाएं, नई नई व्यवस्थाओं से अपने देश का विकास किया. जापान अपनी आजादी बनाए रखने में सफल रहा और पारंपरिक हुनर और अपने प्रथाओं को नए तरीके से उसने इस्तेमाल किया. उसने अग्रेसिव नेशनलिज्म को बनाए रखा और जो कॉलोनाइजेशन कर रहा था उस क्षेत्र में भी उसने अपना विकास किया, जिससे एक दूसरे के बीच काफी सारे डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं. झगड़े हुए, विवाद हुआ. जापान का आधुनिकीकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभुत्व था. कहता है कि जापान उस समय विकसित हुआ, डेवलप हुआ, जब इंपीरियल पावर अपनी ताकतें पूरे देश, पूरे विश्व में फैला रहे थे. साम्राज्यवादी ताकत, इंपीरियल पावर जो थी वो पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़ रही थी, अलग अलग कॉलोनी बसा रही थी. हालांकि जापान की जो व्यवस्था थी मेजी रेस्टोरेशन के बाद, स्कूलिंग सिस्टम थी, उसको एक नए स्वरूप में दिखाई देता है. क्या? तो कहता है कि जापान ने इनकी नकल की, वेस्टर्न की नकल की, साथ ही अपने समस्याओं का उसने हल ढूंढने की भी कोशिश की. जापानी राष्ट्रवाद पर इन मजबूरियों का प्रभाव है. एक और जहां जापान एशिया को पश्चिमी आधिपत्य से मुक्त रखने में मदद करते थे, तो दूसरी ओर दूसरे लोगों के लिए ये विचार साम्राज्य के निर्माण करने के महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ. What I am telling you that one sided we have seen the Japanese set as a role model for the Asian country to not be a part of colony of the imperial power and improve their culture and skill. On the basis of that they can develop country. And other sides, the Europeans felt that Japan want to expand their colonial empire. Japan influenced the other countries
This is very strange, but we should agree, concede it. We should consider that जापान जो कर रहा था वो महत्वपूर्ण स्टेप था जापान के विकास के लिए, जापान की संप्रभुता के लिए, और ये चीजें यूनिक थी, महत्वपूर्ण थी, होनी चाहिए थी। जापान धीरे धीरे एक विकसित राष्ट्र के रूप में फैला। जापान, यहां एक उल्लेख करना ये जरूरी है कि जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जापान ने उनमें भी सुधार किया। डेली लाइफ को बदलने के लिए केवल जो ट्रेडिशंस थे उनको उसने एक नए तरीके से पुनर्जीवित करने या फोर्सली उन्हें पकड़े रखने या संभालने का सवाल नहीं था उनके लिए, बल्कि उन्हें नए और अलग रचनात्मक तरीके से इस अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स, रिचुअल, फेथ, बिलीव, प्रैक्टिसेस का प्रयोग करना था, जो जापान करने में सफल हुआ। उदाहरण के लिए मेजी स्कूल पद्धति, यूरोप और अमेरिकी प्रथाओं के अनुरूप नए विषयों की शुरुआत की, किंतु जो सिलेबस थे उनका मुख्य उद्देश्य लॉयल सिटीजन का निर्माण करना था। मोरल इथिक्स एक विषय के रूप में पढ़ना अनिवार्य था, जिसमें सम्राट के प्रति वफादारी पर जोर दिया गया था। इसी तरह परिवार में और रोजमर्रा की जिंदगी में आए बदलाव विदेशी और देसी विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश को दर्शाते हैं। इस आधार पर जो नया बदलाव हुआ, नया चेंज हुआ, नए ट्रेडिशंस इंप्लीमेंट किए गए, पुराने कस्टम, पुराने फेथ को नए तरीके से रीइंट्रोड्यूस किया गया, और उसके आधार पे उसका मेन एम था कि जापानीज लोगों को एक लॉयल सिटीजन के रूप में डेवलप करना, जो अपने देश की, अपने सम्राट के प्रति सम्मान का भाव रखे। आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अगेन द टॉपिक द टू रोड टू मॉडर्नाइजेशन। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।